آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو جس میں سیلاب آیا ہے اور آپ اس سیلاب سے ڈر کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور آپ اپنے خاندان والوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سیلاب کے دوران میں؟ یا ایسا ہوا کہ کوئی جنگ لگ گئی ہے اور اوپر سے بوم جو ہے وہ گر رہے ہیں اور آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جنگ میں سے بچ سکوں، مجھے چوٹ نہ لگے، اور آپ کے پاؤں بھاری ہیں، آپ بھاگنا چاہتے ہیں لیکن بھاگا نہیں جا رہا. کبھی خواب میں اس طرح کا آپ نے دیکھا ہو؟ یا ہم اس کو ریئل سچویشن میں لے لیتے ہیں کہ کسی کی جان آپ نے بچانی ہے، کوئی مرنے کے قریب ہے اور آپ نے ہاسپٹل اس کو لے کر جانا ہے اور آپ کہتے ہیں میں بس اڑ کے چلا جاؤں، لیکن راستہ تنگ ہے، راستے میں رکاوٹیں ہیں اور وہ پیشنٹ جو بیمار ہے، جو مرنے کے قریب ہے، آپ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ وقت تھوڑا ہے. یا کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ آپ کوئی پلین پکڑنا چاہ رہے ہیں، کوئی بس پکڑنا چاہ رہے ہیں جو بڑی ضروری ہے اور آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ اس تک پہنچ نہیں پا رہے اور ایک تکلیف میں سے ایک ارجنسی کے اندر آپ چل رہے ہیں. اگر ایسا آپ کو محسوس ہوا ہے کبھی، یا کبھی ایسا ہوا کہ سارے فیملی ممبر جو ایک فنکشن کے اوپر، ایک پارٹی کے اوپر جا رہے ہیں اور آپ کو پیچھے چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو وہ فیلنگ میں چاہتا ہوں آپ ایک دفعہ محسوس کریں. اس کشمکش کے اندر جہاں پر آپ ایک سٹک سے نظر آتے ہیں، جہاں پر آپ بے بس نظر آتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے اور وہ فیلنگ جو ہے وہ آج بھی مجھے یاد ہے، بلکہ جوش کو بھی وہ یاد ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں وہ فیلنگ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس سچویشن میں ہوتے ہیں تو کیا ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جب ہم پہلی دفعہ کسی ملک میں آتے ہیں تو فوراً واپس گھر نہیں جایا جاتا. میں جب فن لینڈ کے اندر آیا تو حالات بڑے مشکل تھے شروع کے اندر اور مجھ سے واپس نہیں جایا جا رہا تھا. کبھی ویزے کی پرابلم، کبھی فائنینشل پرابلم، کبھی کوئی پرابلم، اور اب مجھے تقریباً 7 سال گزر گئے تھے کہ میں اپنے دیش، اپنے ملک واپس نہیں جا سکا. اور فائنلی ایک ایونٹ آیا، فائنلی ایک ٹائم آیا جہاں پر ہمیں موقع ملا تاکہ ہم واپس جا سکیں. بیلا پہلے چلی گئیں اور جوش کا پیپر نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے مجھے رکنا پڑا. میں اور جوش پیچھے رہ گئے اور کشمکش کا وقت وہیں سے شروع ہو گیا کہ میری وائف چلی گئی ہے اور میں اور جوش پیچھے رہ گئے ہیں. وہ فیلنگ بڑی عجیب تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جوش کا بھی کچھ دنوں کے بعد وہ کارڈ بن کے آ گیا اور ہم نے ٹکٹ بک کروا لی. اور ٹکٹ بک کروانے میں مجھ سے یہ ہوا کہ میں گھر میں لیٹ ہو گیا کسی نہ کسی وجہ سے، اور فلائٹ کا جو ٹائم جب میں نے دیکھا کہ یار ٹائم تو بہت قریب آ گیا ہے، اور پھر میں نے تیزی کرنا شروع کی. میں جوش کو کبھی کہہ رہا ہوں جلدی کرو، خود تیزی کر رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، بیگ پکڑے ہوئے ہیں اس کا بھی میرا بھی، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنی جلدی ہو جائے میں پلین کو پکڑ لوں، کیونکہ مجھے 7 سال کے بعد یہ موقع مل رہا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو دیکھ سکوں. اور میری بیوی آلریڈی چلی گئی ہے وہاں پر. اور میرے عزیزو، وہ جو کشمکش تھی، وہ جو سٹرگل تھی کہ بس مجھے پہنچنا ہے اس جگہ، لیکن جیسے جیسے حالات ایسے تھے، ہر چیز ایسے تھی جیسے سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، رک گئی ہے، تھم گئی ہے. اور میں بس چاہتا تھا کہ میں دنیا کو ایسے پرے کر کے میں نکل جاؤں، لیکن نہیں نکلا جا رہا تھا.
مجھے وقت کی رفتار کے مطابق ہی چلنا تھا. اور جیسے ہی میں ایئرپورٹ پر بھاگا میں نے دیکھا کہ آگے لائن بھی لمبی لگی ہوئی ہے اور میرا دل اندر سے پتہ نہیں کیا ارجنسی اور ایک عجیب سی فیلنگ میرے اندر آ رہی ہے. مجھے لوگوں پر غصہ آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ لائن جو ہے وہ چھوٹی ہو رہی ہے اور میرا دل دھڑک رہا ہے. لیکن جیسے ہی میں کاؤنٹر پر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی فلائٹ جو ہے وہ چلنے والی ہے. تو میں نے کہا ابھی چلی تو نہیں ہے نا, تو میں آ گیا ہوں, انہیں کہو کہ روکیں. تو وہ کہتے کہ نہیں, آپ کو یہاں تک جانے کے لیے آدھا گھنٹہ لگے گا اور ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ آدھا گھنٹہ دوسرے لوگوں کو لیٹ کرو. تو میں وہاں اس کے ساتھ ضد کرنے لگا, میں آلموسٹ لڑائی کرنے لگا اس کے ساتھ. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اب کچھ نہیں کر سکتے, آپ لیٹ ہو چکے ہیں, اپنے فالٹ کو مانیں. اور پھر میں نے کہا میں غصے سے کچھ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ سیکورٹی ہے, میں فالٹی قرار پاؤں گا. تو پھر میں نے ان کی منتیں شروع کر دی اور وہ فیلنگ بھی میرے لیے عجیب تھی. اور پھر میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے, ایسے آنسو کے رک نہیں رہے. اور جوش آج بھی جب اس لمحے کو یاد کرتا ہے تو کہتا ہے پاپا آپ بہت روئے تھے وہاں پہ. اور مجھے یاد ہے میں بڑا رویا اور جہاز میری آنکھوں کے سامنے سے وہ اڑ گیا اور میں اپنے بیٹے کو سامان کو لے کر بہت نراش, بہت ٹوٹا ہوا اپنے گھر گیا کہ 7 سال کے بعد مجھے موقع ملا. ٹکٹ میرے ہاتھ میں ہے, بیگ سب کچھ تیار ہے. میں نے اس سے کہا میں بیگ یہاں پر ہی پھینک دیتا ہوں, صرف مجھے اور میرے بیٹے کو جانے دو. بیگ کی بھی میں نے پرواہ نہیں کی. وہ کہتے نہیں, آپ اب جا ہی نہیں سکتے. میرے عزیزو, یہ کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس ایکسپیرینس سے, اس درد سے, اس کرب سے میں گزرا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کرب میں سے گزریں کہ جب خداوند کی بادشاہت آئے, جب یسوع اپنے لوگوں کو لینے آئے, جب وہ کہے آؤ میرے بچوں میری بادشاہت میں آ جاؤ, تو ہم لیٹ ہو جائیں. ہمارے پاس نہ ٹکٹ ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ویزا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی تیاری ہے, نہ ہمارے پاس کپڑے ہیں. اور پھر جب خداوند کے لوگ جا رہے ہیں, آؤ چڑھ جاؤ رب دے پیاریوں, گڈی چلی یسوع نام دی, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فیلنگ کو آج محسوس کر لیں کیونکہ وہ بڑی دردناک ہے. جب خداوند کے لوگ فلائٹ کر جائیں گے اور لوگ جو ایمان کے بغیر ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے, یہ بہت بڑا درد ہے. میں نے ابھی اس جہاز کو چھوڑا تو وہ مجھے آج تک نہیں بھولتا, میرے بیٹے کو بھی نہیں بھولتا. لیکن اگر ہم نے خداوند والی فلائٹ مس کر دی نا تو وہ بڑا ڈراؤنا ہے. وہ یہ فلائٹ میں اور لے سکتا ہوں, اس کے بعد خدا نے مجھے موقع دیا, میں بڑے ملکوں میں سفر کر چکا ہوں. لیکن اگر ہم نے اس فلائٹ کو مس کر دیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ڈیزاسٹر ہوگی. اور میں آج آپ کو یہی پڑھانا چاہتا ہوں. ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں, پرکاش کی پوتھی میں سے پڑھا. پہلی اس کی 3 آیتیں لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ, یسوع مسیح کا پرکاش جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے, جن کا جلد ہونا ضرور ہے. خدا باپ نے کس کو دکھایا ہے؟ یسوع مسیح کو. وہ ساری باتیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے. اور جلد ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں کوئکلی, تیزی کے ساتھ ہوئیں گی. یعنی آج آپ نے یہ مصیبت دیکھی ہے, اگلی یہ, اس کے بعد یہ, اور یہ چیزیں جلدی سے ہوئیں گی. خدا کا کلام کہتا ہے. یسوع نے کیا کیا؟ آپ مکاشفہ یعنی پرکاش دی پوتھی 1 باب اس کی 1 آیت کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا.
जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। अब यीशु मसीह ने जो कुछ होने वाला था फ्यूचर के अंदर, वो सारा अपने बंदा यूहन्ना को, जिस यूहन्ना से यीशु प्यार करता था, जो यीशु मसीह का शागिर्द था, उसको वो सारी बातें बताईं और यूहन्ना ने उन सारी बातों को लिखा। और आज वो इस कलाम के अंदर, प्रकाश की पोथी के अंदर, वो इनकी गवाही देता है कि मैंने उन सारी चीज़ों को देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और क्या बता रहा हूं? कहता है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। क्योंकि वक्त नजदीक है। मेरे अजीजों, प्रकाश की पोथी में वो सारी तकलीफें जो दुनिया पर, जो बेईमानों के ऊपर, जो आज यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं, उन सब के ऊपर वो तकलीफें आएंगी। और यूहन्ना कहता है मैंने उनको सब तकलीफों को देख लिया है, इसलिए मैं बताता हूं कि आप इसको पढ़ो, आप इसको सुनो और आप इनके मुताबिक अमल करो। क्योंकि अगर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर हमारा अंजाम बुरा होगा, क्योंकि वक्त नजदीक है। कहते हैं अब वक्त नहीं रहा कि हम सोचते रहें, अब वक्त नहीं रहा कि हम परवाह ना करें। अब वक्त आ गया है कि उन चीज़ों को गौर किया जाए। और मेरे अजीजों, मैंने आज आपके लिए 7 इवेंट्स ऐसे ढूंढे हैं जो जहां पर हमें पता चलेगा कि हम आखिरी वक्त में जी रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको इन 7 पॉइंट के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी नोआ के वक्त में यह सब कुछ हो गया है। हजरत नूह जो था, नूह नबी, वो खुदा का नबी था और खुदा ने उसको 120 साल दिए कि जा लोगों को बता कि तूफान आने वाला है। मैं सारे लोग जो मुझ पर विश्वास नहीं करते, वो लोग जो आज हरामकारी में पड़े हुए हैं, वो लोग जो आज बदकारी में पड़े हुए हैं, गुनाह के अंदर हैं, मैं उन सब को ख़त्म कर दूंगा जब तक कि कोई तौबा नहीं कर लेता, जब तक कि कोई वापस नहीं आ जाता। और जो कश्ती तू बनाएगा, जो उस कश्ती के अंदर चला गया, वो महफूज रहेगा। लेकिन मेरे अजीजों, हिस्ट्री हमें बताती है कि लोगों ने उसकी बात को मजाक समझा। लोग उसको समझते थे कि ये बाबा जो है ये पागल हो गया है। किसी ने भी उसकी बात को ना सुना और सिर्फ वो और उसका घराना, उसके साथ 7 जानें जो थीं वो बचाई गईं। उसके 3 बेटे, 3 बहुएं और उसकी वाइफ, और वो कुल 8 लोग जो थे वो ही सिर्फ कश्ती में आए और बाकी लोगों ने मजाक समझा, बाकी लोगों ने वो बातों को एमी लिया और वो अपनी दुनिया में अपने गुनाह में खोए रहे और तूफान आया और सब कुछ बहा कर ले गया। आज ये सिर्फ हिस्ट्री रह गई है। आज जो है लोग इसको एक इवेंट के तौर पर देखते हैं कि एक दफा ऐसा हुआ था, लेकिन काश उन लोगों की हालत भी आप देखते कि जो तरले लेते होंगे, जो कश्ती को खटखटाते होंगे, जो उसके साथ चिमटते होंगे, जो कहते होंगे काश हमने इस बुजुर्ग की सुन ली होती, काश हमने खुदा के बंदे की आवाज को सुन लिया होता। उस कर्ब को, उस दुख को जिसमें वो कश्ती को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहे होंगे कि प्लीज माफ कर दो हजरत नूह, माफ कर दे खुदा, माफ कर दे हमें। लेकिन जब दरवाजा बंद हो गया तो फिर चांस नहीं था। मैं चाहता हूं आप उस लम्हे को याद करें। फिर खुदा ने वादा किया कि आज के बाद मैं दुनिया को पानी के साथ नहीं मारूंगा, लेकिन खुदा ने यह भी कहा कि मैं अगली दफा दुनिया को आग के साथ तबाह करूंगा जो मेरी बात नहीं सुनते। और फिर यह वाकया सदूम और अमूरा के टाइम पर हुआ, जो शहर बदी के अंदर था, जो गुनाह के अंदर था, जो खुदा को भूल चुका था। तो मेरे अजीजों, वहां पर जो है खुदा ने लूत को तैयार किया,
लूत के दिल को उभारा कि वो लोगों को कलाम बताए, लेकिन अफसोस के साथ कि इस दफा तो हम तो पहले देखते हैं ना कि नूह के 3 बेटों के साथ उनकी बहुएं आ गईं, लेकिन अब यहां पर यह हाल हुआ है कि लूत की बेटियां थीं, 2 बेटियां थीं, और उनकी बेटियों के जो हस्बैंड थे वो भी साथ नहीं आए, और उसकी वाइफ भी जो है उसने भी, खुदा ने कहा था पीछे मुड़ के ना देखना, और उसने भी पीछे मुड़कर देखा। जब वो शहर तबाह हो रहा था तो वो नमक का सतून बन गई, नमक का खंबा बन गई, और आज तक वो इबरत का निशान रही। तो मेरे अजीजों, ऐसे दुनिया में हालात आते रहे हैं जहां खुदा ने उनको चैलेंज किया, उनको कहा कि मेरे पास आ जाओ, अपनी जिंदगियां बचा लो, कश्ती बनी है, आ जाओ, ये कश्ती है। मैं आपको सच कह रहा हूं, एक वक्त आने वाला है कि जो आज इस कश्ती के अंदर हैं वो महफूज रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप लोगों ने सही चुनाव कर लिया है, आप महफूज रहेंगे, आप यीशु के आने पर उसके साथ होंगे। एवा मारिया ने क्या बात कही? उसने कहा चाहे मेरी जिंदगी में दुख है, चाहे मेरी जिंदगी भी आसान नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज का कॉन्फिडेंस है, एक चीज की श्योरिटी है कि मैं अगर मरी तो मैं अपने बाप के पास जाऊंगी, मैं आसमान पर जाऊंगी। ये बड़ी 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 तसल्ली है। मैंने बड़ी दफा आपको बताया होगा कि मैं कहता हूं कि मैं हैप्पीएस्ट पर्सन हूं इस दुनिया का, और उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं मरा तो मैं खुदा के पास जाऊंगा। ये बहुत बड़ी तसल्ली है, क्योंकि सबसे बड़ा डर लोगों को मौत का ही डर होता है। सबसे बड़ा डर लोगों को यह होता है कि मैं बीमार ना हो जाऊं, और हमें पता है क्या होता है? ओके, कोई बात नहीं, बीमार हो जाओगे तो मेरा शाफी मौजूद है जिसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए डर नहीं आता, बीमारी से डर नहीं आता, मौत से डर नहीं आता, हालात से डर नहीं आता, जंग से डर नहीं आता। हमें पता है हम किसके हाथ में हैं? खुदा के हाथ में हैं। इस मुकाशफा की किताब में जो यूहन्ना है वो एक विजन देखता है, और विजन क्या देखता है कि 7 चिरागदान है। चिरागदान क्या होते हैं? जैसे लाइट्स हैं, ठीक है, 7 लाइटें हैं। चिरागदान, चिराग आप समझते ही हैं, बड़े चिरागदान हैं, और वहां पर उनके दरमियान में यीशु मसीह वो फिरता हुआ दिख रहा है उन चिरागदानों के दरमियान में। हालेलुया। और यीशु के हाथ में 7 सितारे हैं, और ये विजन उसने देखी है। तो बाद में फरिश्ता उसे बताता है कि जो चिरागदान 7 तूने देखे वो 7 कलीसियाएं हैं। 7 कलीसियाओं का मतलब है पूरी कंप्लीशन का आदद है, ये कामलियत का आदद है, ये परफेक्शन का आदद है। पूरी दुनिया को जाहिर करता है कि जहां जहां पर भी मेरी कलीसियाएं हैं, मैं अपनी कलीसियाओं के दरमियान घूमता फिरता हूं, यीशु कहता है। और उसके हाथ में 7 सितारे हैं, और फरिश्ता उसको बताता है कि वो जो 7 सितारे तूने देखे हैं वो उस कलीसियाओं के मैसेंजर हैं, पास्टर्स हैं, जो उस चर्च के अंदर खिदमत करते हैं, और हम उसके हाथ के अंदर हैं। तो मेरे अजीजों, आप याद रखें कि यीशु हमारी कलीसिया के अंदर मौजूद है, और खुदावंद के लोग उसके हाथ के अंदर हैं, और यीशु कहता है कि मेरे हाथ से कोई तुम्हें छीन नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए आनंद मनाएं, इसलिए आज के पैगाम पर गौर करें, क्योंकि वक्त नजदीक है, यीशु मसीह कहता है। और आज आप देखेंगे इन 7 पॉइंट के बारे में जो यीशु मसीह के मुंह से ही निकले हैं। यीशु मसीह ने ही, क्योंकि वो आसमान से आया है और बाप ने सारा फ्यूचर उसको बताया है, और उसने यूहन्ना को बताया, और यूहन्ना ने इस किताब के अंदर लिख दिया। आज अगर आप समझते हैं ना, पता नहीं दुनिया में क्या होने वाला है, ये जंग का नतीजा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, हाय कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है, नहीं ना पता। तो आप याद रखें, जिन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ा हुआ है उन्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। वो जानते हैं हम फतह वाली साइड के ऊपर हैं, और हम खुदावंद के हाथ में महफूज रहेंगे।
तो अब मैं चाहता हूं कि हम उन 7 पॉइंट्स को देखें जहां से हमें पता चलेगा कि हम किसके हाथ में हैं। बल्कि इससे पहले कि हम 7 पॉइंट को देखें, मैं चाहूंगा दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब उसकी पहली 8 आयतों को आप पंजाबी जुबान में सुने। और ये माइक आप ले सकते हैं, सुनिए, गौर से सुनिएगा, इसमें आपको पूरी कहानी नजर आ जाएगी। दूसरा पतरस और उसका दूसरा बाब उसकी पहली 8 आयतें यहां से भी आप देख सकते हैं। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਉੱਠੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਦਤਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। हाँ, तो अब क्या इन हवाला जात में हम देखते हैं कि उस वक्त भी झूठे लोग आ गए थे जो आपको गलत मशवरे देते थे, जो आपको गलत गाइड कर देते थे। कल भाई मुझे बता रहे थे कि एक जान नाश हुई क्योंकि किसी ने उसको गलत गाइड कर दिया था। तो इस तरह के झूठे नबी जो हैं वो हमारी कलीसियाओं के अंदर भी आ जाएंगे ताकि वो लोगों को नाश करने के लिए वर्गला दें। तो ये पुराने नेम में जो नोआ था, हो सकता है नोआ इधर से कलाम सुनाता हो हजरत नू, और दूसरे लोग कहते हो छड़ परे ओदा तो दिमाग खराब है। आगे पढ़ते हैं। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। आगे ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬਨਾਵਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਚਰੋਕਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ उगलाਉਂਦਾ नहीं। हाँ, तो याद रखें, जितने लोग आज यीशु मसीह को लालच की बिना पर फॉलो कर रहे हैं कि मुझे चंगाई मिल जाएगी, मुझे वीजा मिल जाएगा, मुझे कोठी मिल जाएगी, मुझे कार मिल जाएगी, याद रखें कि जितने लोग, खुदा का कलाम कहता है, लालच की बिना पर यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं वो नुकसान उठाएंगे। आगे, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਧਕੂਪਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬੂ ਰਹਿਣ। हाँ, और ये फरिश्ते इसलिए कैद के अंदर थे क्योंकि ये इन्होंने पाप की तरफ दिल लगाया, इन्होंने लालच किया था, तो खुदावंद ने इनको आज तक कैद में रखा है। फिर ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਲੋ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ 7 ਹੋਰਨਾਂ ਸਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। यहां पर नूह 7 और लोगों के साथ बचाया गया है लेकिन बाकी नहीं बचाए गए। फिर ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰਕੇ ਢਾਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਠਹਿਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। तो बचने की उम्मीद है। उधर 8 जाने बची, इधर 3 जाने बची। कौन कौन याद है? लूत और उसकी 2 बेटियां बच गईं, उसकी बीवी भी नहीं बच सकी थी लालच की बिना पर। और पता है उसने वापस क्यों देखा? हाय मेरा घर, उसका घर उसको लेके बैठ गया, डबो दिया और वो वहीं जो है पत्थर बन गई, वो वहीं पर नमक का खंबा बन गई। और मेरे अजीजों, अब हम देखते हैं इन 7 पॉइंट्स को जो यीशु मसीह हमें दिखाते हैं। और इसमें पहले नंबर पर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मेरे आने से पहले तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाह सुनेंगे। हम 24 बाब की 6, 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील 24 बाब 6 से 8 आयत। तो क्या है यहां पर? वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और वो आप देख रहे हैं। पहले रशिया का और यूक्रेन का, जो अगर ये जंग बढ़े तो पूरे
यूरोप को ये अपनी लपेट में ले लेगी। और अब इसराइल की, ईरान की और अमेरिका की जंग अगर बढ़ती है तो पूरी दुनिया लपेट में आ जाएगी। और फिर वही जो मैंने आपको ख्वाब दिखाए, वही जो मैंने कश्मकश दिखाई, आप इमीडिएटली उसमें फंस सकते हैं अगर आपने यीशु मसीह को अपने दिल का राजा नहीं बनाया तो। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। हाँ, ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ। आमीन, ये होगा। और यीशु मसीह के शागिर्दों ने पूछा, खुदावंद तेरे आने और दुनिया का एंड होने के क्या निशानात हैं? तो यीशु मसीह ने बताया कि ये निशानात होंगे। आज सिर्फ कौम पर नहीं, आपस में भी लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट को देखते हैं और दूसरे नंबर पर है नेचुरल डिजास्टर्स, और इसको हम पढ़ेंगे मत्ती 24 बाब और उसकी 7वीं आयत में हम देखेंगे। ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ। हाँ, जगह जगह क्या पढ़ेंगे? काल पढ़ेंगे और ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ और भूचाल आएंगे। पर ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀੜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। हाँ मेरे अजीजों, जब आप तहकीक करते हैं ना कि इस टाइम में सुनामी, और यहाँ पर खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि लहरों के शोर की वजह से लोगों की जान में जान बाकी ना रहेगी, तो सुनामी कभी किसी ने नहीं सुना था। आज सुनामी जो है जैसे ही आता है तो शहर के शहर तबाह कर देता है। आप देखते हैं अचानक बारिश होती है और वहाँ पर सारा पूरा शहर डूब जाता है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। और भी बड़ी आफतें जो हैं वो दुनिया के अंदर, बुंचाल इतने ज़बरदस्त आते हैं कि शहरों को उलट पुलट कर रख देते हैं। और ये अभी शुरुआत है, ये अभी भी शुरुआत है मेरे अजीज़ों। तो हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें यही बताता है। और फिर हम तीसरे नंबर पर देखते हैं बीमारी। आज हर बंदा इंडिया, पाकिस्तान में शुगर का, ब्लड प्रेशर का और क्या उसको कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट का, किसी को भी देख लें, हर बंदा आपको कोई ना कोई बीमारी के अंदर वो रहेगा। आज मैंने पाकिस्तान में फ़ोन किया और मुझे सुबह उठते ही एक खबर मिली कि हमारा एक रिलेटिव है जो शुगर की वजह से, शुगर के फोड़े उसको निकल आए थे और वो बुरी हालत में था, और आज सुबह उसकी डेथ हो गई। तो बड़ा दुख हुआ मैंने बेला के साथ जब इसको शेयर किया। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया एक और बंदा भी है हमारे मोहल्ले में जिसको शुगर के फोड़े हैं उसकी टांग पर, और वो कहते हैं उसकी टांग काट दी जाएगी और काटने के बाद उसके बचने के चांस भी बहुत थोड़े होंगे। तो आप ये देखें कि बीमारियां इतनी दुनिया में फैली हुई हैं कि पता नहीं चलता। पहले लोगों के बारे में आपने सुना बड़े तंदुरुस्त थे, आज भी बुजुर्ग जो है ना वो हमारे से ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है लोग सोल होते चले जा रहे हैं, लोगों की जान इतनी मजबूत नहीं रही, वो फौरन बीमारियों के अंदर, इवन छोटे बच्चों में भी हमने देखा कि शुगर की बीमारियां और हार्ट अटैक की बीमारियां और ब्लड प्रेशर की बीमारियां उनके अंदर मिल जाती हैं। तो ये आखिरी दौर की निशानियां हैं मेरे अजीजों। अब और एक चीज देखते हैं, चौथे नंबर पर है कि जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ जाएगा। इसको हम देखते हैं दानियल 12 बाब और उसकी पहली 4 आयतें को मैं चाहता हूं कि भाई पढ़े। दानियल 12 बाब उसकी पहली 4 आयतें गौर से सुनिएगा, इसके अंदर आपको बड़े राज की बातें दानियल आखिरी दौर के बारे में बताता है। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਕਾਇਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ, कैसा वेला होएगा? बिपता का वेला होगा, तकलीफ का वक्त होगा। आखिरी दौर की बात हो रही है। ਜਿਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ उस वेले तिकर कदी नहीं होया सी। हाँ, पहले ऐसा बिपता, ऐसी तकलीफ का वक्त पहले कभी नहीं हुआ था।
ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਉ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਛੁੱਟੇਗਾ। हालेलुया। कौन छूटेगा यहाँ पर? जिसका नाम किताबे हयात के अंदर लिखा हुआ मालूम हुआ। तो आप सोच लें कि क्या आपको लगता है कि आपका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है? अगर डर लग रहा है तो समझें फिर आपको किताबे हयात में नाम लिखवाने की जरूरत है। आगे, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜਾਗ ਉਠਣਗੇ। हालेलुया। सिर्फ ईमानदार ही बचाए नहीं जाएंगे, बल्कि वो ईमानदार जो आज मर चुके हैं खुदावंद में, वो भी जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। आगे, ਕਈ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਨਿਰਾਦਰੀ ਲਈ। हाँ, वो जो मसीह में नहीं मुए वो हमेशा की आग में जाने के लिए जिंदा किए जाएंगे, और जो मसीह के हैं वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ ओ जो बुद्धवान, और बुद्धवान कौन है? जो खुदा का कलाम सुनते हैं, वो जो अपना वक्त खुदावंद को देते हैं, वो जो अपना वक्त इस कीमती खजाने में से ढूंढने के लिए लगाते हैं। ਅੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਂਗਰ ਚਮਕਣਗੇ। कैसे चमकेंगे वो? सितारों की तरह। और यीशु के हाथ में वो क्या थे? सितारे थे। हालेलुया। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤਿੱਕਰ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੈ ਦਾਨੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦ ਰੱਖ ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਉੱਤੇ ਉੜਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰੱਖ। ਬਥੇਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਧੇਗੀ। विद्या वधेगी। आखिरी दौर की निशानी है कि इल्म बहुत फैल जाएगा। आज इंटरनेट ने, आज एआई ने, आज दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है कि लोग चांद पर जाना ऐसे समझते हैं जैसे किसी दूसरे मुल्क को विजिट करना है। तो मेरे अजीजों, ये सारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी ये सारी है, ये खुदावंद का पैगाम है कि आखिरी दौर की ये निशानी है। और हम अब देखेंगे कि अगर नॉलेज बढ़ेगा तो बदी भी बढ़ेगी। और अगला 5वां नंबर जो है वो उसको हम देखते हैं कि इंक्रीज इन विकेडनेस। जो बदी है, बेदीनी है, वो बढ़ जाएगी। हम 2 तिमोथी उसका 3 बाब उसकी पहली 5 आयतों को गौर से सुनते हैं और देखते हैं कि क्या मैं भी इस बदी का शिकार तो नहीं हूं। यीशु मसीह मत्ती 24:12 में लिखता है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। मेरे अजीजों, हमारी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बेदीनी दुनिया में आ जाएगी। और बेदीनी की क्या निशानियां हैं ये हम पढ़ते हैं। 2 तिमोथी 3 बाब और उसकी पहली 5 आयतें। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਭਈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। हाँ, कब पैड़े समय आएंगे? अंत के दिनों में। फिर ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, हाँ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, हाँ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਹੰਕਾਰੀ, हंकारी, ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, कुफर बकन वाले, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ, मापियां दे आज्ञाकार, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ना शुक्रे, अपवित्र, अपवित्र, नापाक, ਨਿਰਮੋਹ, और तबई मोहब्बत तो खाली, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, संग दिल, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, तोमत दूसरे पे लगाने वाले, ਅਸੰਜਮੀ, बेजब्त, ਕਰੜੇ, तुंद मजाज ਨੇਕੀ ਦੇ ਵੈਰੀ, ते नेकी दे दुश्मन होंगे, ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ, जो दगाबाज होंगे, ਕਾਲੇ, ढीठ होंगे, ਘਮੰਡੀ, घुमंड करने वाले, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ। हाँ, और खुदा की निस्बत वो ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ वो भगत का रूप तो धारनगे, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। हाँ, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਰਹਿ। ऐसों से भी बचे रहना। आपको नजर आएगा कलीसिया के अंदर वो लोग बड़ा कहते हैं मैं तो रब दा हूं जी, मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन अंदर से वो सारे बुरे काम जो खुदा को नापसंद है वो आराम से कर रहे होते हैं, और दुनिया को बताते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं भगत हूं, मैं तो पास्टर हूं।
अगली बात को हम देखते हैं 6 नंबर पर, क्या निशानी है? द गॉस्पल विल रीच टू द ऑल नेशंस। और इसको हम पढ़ेंगे मत्ती 24 बाब की 14 आयत को देखेंगे। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। मेरे अजीजों, ये जरूर है खात्मा होने से पहले कि खुदा का कलाम जो है वो हर इंसान के ऊपर पहुंच जाए, हर मजहब के ऊपर, हर जुबान के ऊपर, हर बंदे के ऊपर ये खुदा का कलाम पहुंच जाए, ताकि वो ये ना कहे प्रभु मैंने तो तेरे बारे में सुना ही नहीं, ये बहाना ही ना रहे उनको। तो जब तक ये कलाम सारी दुनिया पर नहीं पहुंच जाता तब तक खात्मा नहीं होगा। और आज जो क्रिश्चियंस हैं वो उन्होंने देखा है कि हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह खुदा का कलाम पहुंच गया है। रेडियो के जरिए, रिटन में, हर जुबान में, पता नहीं 2000 से ज्यादा जुबानों में किताबें लिखी गई हैं, खुदा का कलाम पहुंच रहा है। अब थोड़े से लोग ही रह गए हैं जिन्होंने इस कलाम को अभी तक नहीं सुना। और आखिरी जो पैगाम है वो है सब्बत का आराम। और इसको हम देखेंगे इब्रानियों 4 बाब उसकी 9 से 11 आयत तक। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਸਬਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਭਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। आमीन। अब खुदा ने जो सब्बत का आराम रखा है ना, कि आप क्या करो, 6 दिन काम करो और 7वें दिन क्या करो, आराम करो। मेरे अजीजों, अगर हमारी जिंदगी में आराम नहीं है ना तो ये हम बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इस आराम की, आज का दिन जो ठहराया गया है चर्च में आने का, ये आराम का दिन है। हालेलुया। किसका दिन है ये? और अगर हम इस आराम के दिन को छोड़कर अभी भी हम काम पर फंसे हुए हैं तो फिर समझें कि गलती हो रही है, फिर मिस्टेक पर हैं हम लोग। ठीक है, जो दिन ठहराया गया है और खुदावंद ने कहा 6 दिन तुम काम करो, 7वें दिन आराम करो। और आपको पता है खुदा की नजर में एक दिन हमारे लिए कितने साल के बराबर है? 1000 साल के बराबर है। तो खुदावंद ने सब्बत का आराम हमारे लिए रखा है, 1000 साल का आराम हमारे लिए रखा है। 6000 साल इस दुनिया में हमने काम करना है, मुश्किल उठानी है, तकलीफ उठानी है, लेकिन 7वां 1000 साल क्या है? आराम का है, ज़ियाफत का है, पार्टी का है, खुदा के साथ खाने पीने का है। वहां पर हम काम नहीं करेंगे, आराम करेंगे। और मैं अब आपको बताना चाहता हूं, जो मसीही हैं, जो नबियों ने, जो तारीख ने, मसीही हिस्ट्री ने हमें जो साल दिया है, वो कहते हैं हम 6000 को पूरा करने वाले हैं, 6000 साल पूरे होने वाले हैं। और जैसे ही वो पूरे हो गए तो हम किस में शामिल हो जाएंगे? 7वें 1000 साल में। इसीलिए सब्बत में शामिल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं अब वक्त नजदीक नहीं बल्कि आ गया है। तैयार हो जाएं। हमें सारी निशानियां होती हुई पूरी नजर आती हैं। हालेलुया। इसलिए अब सोने की जरूरत नहीं है, अब जागने की जरूरत है। आपको पता है वो 10 कवारियों की कहानी, उसमें जो वो सारी खुदावंद की बेटियां थीं, वो सारी इनवाइटेड थीं, लेकिन क्या हुआ? 5 जो थी वो तैयार रहीं, जागती रहीं, और दुल्हे के आने पर दुल्हे के साथ चली गईं और फिर दरवाजा बंद हो गया। लेकिन जो सो गई थी उनके साथ क्या हुआ? वो उठी और फिर मेरे वाला हिसाब हुआ। जब मैं भाग रहा था, याद करें उस लम्हे को, ये भी फिर भाग रही, ये इधर भाग रही हैं, उधर भाग रही हैं, किसी से तेल मांग रही हैं, मुझे दे दो, मैंने दुल्हे के इस्तकबाल को जाना है। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचती हैं दरवाजा बंद है। और अब खुदा का कलाम कहता है उनके लिए बाहर बैठना, रोना और दांतों का पीसना होगा। तो मैं आज आपको यही बताता हूं मेरे अजीजों, कहीं ऐसा ना हो
कि हम रहे हुए मालूम हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे मिस्टेक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम सो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की बातें हमें अपनी अपनी चीज़ों में जकड़ लें, शराब नोशी हमें ले बैठे, नशा हमें ले बैठे, हरामकारी हमें ले बैठे। पौलुस रसूल कहता है कि ध्यान से देख कि तू कैसे चलता है। वो कहता है मैं तो उस मंजिल की तरफ, मैं उस डेस्टिनेशन की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। और हमें अपनी मंजिल को दौड़ते हुए तरोताजगी के साथ पूरा करना है, फिर वहां पर आराम है, फिर जिंदगी है। तो मेरे अजीजों, अब हमें करना क्या है? क्या आप बता सकते हैं? अब सब कुछ सुना है तो हम क्या करें? पतरस से पूछा गया हम क्या करें, तो क्या कहा था पतरस ने? तौबा करो और बपतिस्मा लो। हालेलुया। यीशु के आने से पहले एक बंदे ने मुनादी की थी, यूहन्ना ने। क्या कहा था उसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी क्या थी? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यीशु ने उसी की बात को आगे जारी रखा कि मैं तुम्हें दोबारा चांस देता हूं, तौबा करो। सलीब पर उसने क्या कहा? मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन कहता है तौबा करो ताकि तुम्हारी जान बचाई जा सके। हमें सेकंड चांस मिल गया है मेरे अजीजों। अब हमें तौबा करना है, हमें खुदावंद की राहों पर चलना है। और जैसे ही आप बदी के रास्ते को छोड़कर खुदावंद के पास आ जाएंगे, हमेशा की जिंदगी के आप वारिस बनेंगे। हम एक हवाला पढ़ने के बाद आज की बाइबल स्टडी को ख़त्म करेंगे। यसाया पहला बाब उसकी 16 से 18 आयत को पढ़ते हैं। ਨਹਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ बुरे ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ दूर करो। हाँ, खुदावंद कहता है क्या करना है अब हमें? नहाओ। नहाओ। नहाने का मतलब क्या है? बपतिस्मा लो, अपने आप को पाक करो और अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। आगे, बुराई ਨੂੰ ਛੱਡੋ, बुराई नु छड़ना है, नेकी सीखो, नेकी करनी है, न्याय ਨੂੰ ਭਾਲੋ, इंसाफ के तालब होना है, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, और मजलूमों की मदद करनी है, ਯਤੀਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ, यतीमों की फरियाद रसी करनी है, ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋ, और बेवाओं के साथ हामी बनना है। आओ ਅਸੀਂ सलाह करिए। खुदावंद कहता है आओ हम बाहम हुज्जत करें, बातचीत करें। यहोवा आखदा है, यहोवा फरमाता है ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮਚ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, अगर तुम्हारे गुनाह किरमस जैसे हैं, लाल सुर्ख हैं आपके गुनाहों का रंग, तो ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। बर्फ जैसे सफेद हो जाएंगे। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜੀਠ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਹੋਣ, और चाहे वो मंजीठ, ये मंजीठ रंग है, लाल और काला रंग, काली हमारी करतूतें और लाल रंग गुनाह जब दोनों मिल जाते हैं तो ये रंग बन जाता है। ਉਹ ਉੱਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो ये इस तरह के पाप भी ऊन जैसे सफेद हो जाएंगे अगर हम खुदावंद के पास आ जाएं। आज मेरे अजीजों, हमारे पास खुदावंद के पास आने का वक्त है। आज वो हमें बुलाता है, आज वो कहता है, उन कलीसियाओं में घूमता फिरता है और कहता है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास वापिस आ जा। वो उसकी आंखें जो आग के शोले की तरह हैं, वो कहता है मैं तेरे सारे कामों से जानता हूं। कहां तेरी पहली सी मोहब्बत कहां है? तेरी पहली सी मोहब्बत कहाँ है? और आज हमने ये देखना है, जब हमने शुरू किया था तो हम कहाँ थे, आज कहाँ है? कहीं दुनिया की सुस्ती ने हमें तो सुस्त नहीं कर दिया, कहीं दुनिया के गुनाह ने हमें तो अपनी लपेट में नहीं ले लिया। आज ये देखने की ज़रूरत है, और अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो वापिस आ जाएं अपने बाप के पास। वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। मुसरफ बेटे की तरह वो अपनी बाहें फैलाए। सलीब के ऊपर यीशु मसीह की बाहें ऑलवेज खुली रहती हैं, वो पापियों को गले लगाने के लिए खुली रहती हैं। आ मेरे बेटे, मेरे पास आ मेरे साथ खाना खा। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।